Hi students, how are you all? कैसे हैं आप सब? Good morning everyone. I hope things are going absolutely well at your end. Everything is going fine. I hope everything is well at your end, right? Chalo, I welcome you all to my series Crack Social Science, and as we all know, I'll be discussing the second part of the second chapter of economic sectors of Indian economy. I hope बच्चों first part of this chapter sectors of Indian economy समझ में आ गया है, clarity मिल गई है, concepts clear हो गए हैं, अब कोई doubt नहीं रहा है. What we discussed in the first part, the classification of economic sectors discuss किया था. Three types से we can classify the economic sector, and we were particularly particularly discuss the first classification of economic sector, how the primary sector, secondary sector and tertiary sector. This was the first classification of economic sector और हमने तीनों sectors को study कर लिया था, समझ में आ गया है. Primary sector deals directly with the natural resources. Secondary sector में बच्चों some form of manufacturing is essential, and tertiary sector broadly deals with the services. Tertiary sector does not produce any goods and services ही ऑफर करते हैं, राइट. सो फार सो गुड, हमने देख लिया था, तीनों सेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर लिया था. देन वी आल्सो डिस्कस द हिस्टोरिकल चेंज इन दी सेक्टर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ दी सेक्टर्स हिस्टोरिकली ओवर टाइम कैसे चेंज हुआ है. अर्लियर वी ऑल नो जब इकोनॉमी स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स द प्राइमरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट एंड इट गेन्स इंपॉर्टेंस. धीरे धीरे बच्चों फोकस शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती रहेगी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्रूव होगा तो सेकेंडरी सेक्टर गेन्स इंपॉर्टेंस. और इंडिया में भी बच्चों ऐसे ही हुआ है. एंड नाउ tertiary sector is the most important sector in the economy. Services जो be it the essential services जैसे कि doctor, education, teaching, IT services, these sectors have grown important. इनकी बच्चों importance बढ़ गई है. And tertiary sector also assist and aid the two sectors. बच्चों ये हमने सब discuss कर लिया है in the first part of this chapter. In the last session I have discussed this. So if any student has not seen that session, follow the session. I strongly recommend कि बच्चों उसको देख ले, so that this part would be absolutely clear. ये part easily समझ आ जाएगा, right? So बच्चों give me a thumbs up so that I can quickly start with today's session, right? Now we'll be moving further. बच्चों आगे बढ़ेंगे. We all discussed the three sectors in the last session, the primary sector, secondary sector and tertiary sector, right? So बच्चों अब हमने ये तीन sectors को compare करना है. किस basis पे? One basis by value of final goods and services. तीनों sectors को primary, secondary and tertiary sector को compare करेंगे by the value of final goods and services, जिसको बोल दिया जाता है GDP. बच्चों GDP, I hope we all are aware of what is GDP. The total value of all the goods and services. कितनी goods and services बनी है एक particular sector में. If we are talking about the three sectors, तो अगर sectors की GDP निकालनी है तो बच्चों एक sector में कितनी total goods and services produce हुई है एक साल के अंदर, उसकी अगर final value निकाल दी जाएगी, that becomes the GDP of that particular sector. वो बन जाएगी GDP of that sector. समझ में आ गया? I hope GDP समझ में आ गया है. So I hope we can now relate to it कि compare कैसे करेंगे. The first basis is by value of final goods and services, जिसको बोल दिया जाता है total production in a particular year, एक साल के अंदर, right? So GDP जिसको बोल दिया जाता है, तो इसमें बच्चों क्या इग्नोर किया जाता है? We ignore the intermediate goods. इसमें बच्चों when we are talking about final goods and services, इसमें intermediate goods नहीं लिए जाते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने आपकी स्लाइड में दिया है, मेंशन किया है, अगर हम बिस्किट्स, कोई इंडस्ट्री है जो कोई फैक्ट्री है जो बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो बच्चों उसकी सेकेंडरी सेक्टर में अगर बिस्किट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो बच्चों बिस्किट की वैल्यू ली जाएगी. लेकिन अगर बिस्किट के अंदर क्या क्या चीजें डली हैं, जहां यहाँ तो बिस्किट बना होगा आटे का या मैदे का, राइट? ओट्स का भी बन सकता है. सो बच्चों अगर वो आटे का बिस्किट है तो व्हीट डला होगा, राइट? शुगर भी डली होगी, शुगर वाले बिस्किट्स हैं. और अगर चॉकलेट बिस्किट है तो चॉकलेट भी डली होगी, राइट? तो बच्चों ये जो अंदर जो इनपुट्स डाले हैं बिस्किट्स को बनाने के लिए,
वो इनपुट्स को नहीं लेना है, काउंट नहीं करना है इन दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो फाइनल वैल्यू नहीं मानी जाएगी, फाइनल गुड नहीं माना जाएगा। ऑल्दो किसी के लिए वो फाइनल गुड है, लेकिन आपने जब बिस्किट को ऑफर किया मार्केट में, जब आपने बिस्किट सेल किया किसी शॉपकीपर ने, तो वो उसमें बच्चों ऑलरेडी व्हीट की, शुगर की और चॉकलेट की वैल्यू इंक्लूड हो गई हुई है। तो इसलिए बच्चों जब हमने बिस्किट के अंदर जो इनपुट्स डाले हैं उसकी वैल्यू को नहीं कंसिडर करना है। समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई है। लेकिन बच्चों अगर व्हीट एज इट इज किसी ने सप्लाई किया है, प्रोड्यूस किया है व्हीट और आगे सप्लाई हुआ है, तो बच्चों अगर वो डायरेक्टली सप्लाई हुआ है, वो डायरेक्टली यूज हुआ है व्हीट या शुगर या चॉकलेट, उसकी वैल्यू ली जाएगी। लेकिन अगर इंटरमीडिएट गुड्स, अगर वो इनपुट एज एन इनपुट यूज हो रहा है किसी और फाइनल गुड को बनाने के लिए, तो वो जो इनपुट वाले गुड्स हैं, सर्विस गुड्स हैं, तो वो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, जिसको बोल दिया जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ गया? आई होप क्लैरिटी मिल गई है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है while we calculate the value of final goods and services in all the three sectors। तीनों सेक्टर्स की जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। समझ में आया? क्लैरिटी मिल गई बच्चों? सो एज आई सेड, ओनली द फाइनल कंजम्पशन वैल्यू इज टेकन। सिर्फ फाइनल जो कंजम्पशन वैल्यू है, अगर वी डायरेक्टली यूज हुआ है, शुगर डायरेक्टली यूज हुआ है, तो उसकी वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर व्हीट और शुगर किसी और चीज को बनाने के लिए यूज हुआ है, तो बच्चों फाइनल जो आउटपुट निकला है, बिस्किट जो एज डायरेक्टली कंज्यूम हुआ है, सिर्फ उसकी वैल्यू लेंगे, व्हीट और शुगर की वैल्यू नहीं लेंगे। समझ में आ गया? सो कंपेयर करना है थ्री सेक्टर्स को बाय वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड बच्चों जीडीपी क्या होता है? आई होप हमें क्लैरिटी मिल गई। आई हैव डिस्कस दैट इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, पर फिर भी आपको बता देती हूँ, जीडीपी होता है बच्चों सिंपल टर्म्स में द सम वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी टोटल गुड्स और सर्विसेज बनी हैं कंट्री के अंदर, प्रोड्यूस हुई हैं, टोटल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं और सर्विसेज ऑफर हुई है, अगर उसकी वैल्यू निकाल ली जाए बच्चों, एक तो होगा यूनिट्स के टर्म्स में हम प्रोडक्शन को काउंट करेंगे, एक होगा उसकी वैल्यू निकाल दी जाए। सिंपल मैथमेटिक्स, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू दी वैल्यू। तो अगर उसकी जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी वैल्यू निकाल ली जाए, और अगर तीनों सेक्टर्स की वैल्यू को, तीनों सेक्टर्स की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, बी इट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर लिया जाए, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को तीनों सेक्टर के अंदर ऐड कर लिया जाए इन अ ईयर, एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री में, वो बन जाती है कंट्री की जीडीपी। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया है। जीडीपी क्या है कि टोटल कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर, वो बन जाती है कंट्री की जीडीपी। और इट क्या दिखाएगा बच्चों, कितनी जितनी डिमांड बढ़ी होगी, जितनी गुड्स प्रोड्यूस हुए होंगे या सर्विसेज ऑफर हुई होंगी, तो उससे पता चल जाएगा, इट शोज हाउ बिग अ कंट्री साइज इज। बच्चों जितनी डिमांड हो रही है, जितनी इकोनॉमी की इकोनॉमिक वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना बड़ा इकोनॉमी का साइज है कंट्री का। क्लैरिटी मिल गई? अगर यहाँ पर गुड्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं और वैल्यू कम सर्विसेज ऑफर हो रही है, तो मतलब कि इतना बड़ा, इट इज नॉट इकोनॉमिकली दैट बिग कंट्री। और अगर जहां पर कंट्री ज्यादा डिमांड हो रही है, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बच्चों इकोनॉमी का साइज डिनोट करता है। क्लैरिटी मिल गई? समझ में आ गया? तो जीडीपी जितनी बढ़ेगी, इट विल शो हाउ बिग अ कंट्री साइज इज इकोनॉमिकली, राइट? So बच्चों, we have to compare the three sectors. One is by value of final goods and services, तीनों सेक्टर के अंदर, जिसको रेफर कर दिया जाता है जीडीपी से, और सेकंड इज by way of employment generation। तीनों सेक्टर्स ने बच्चों कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, हर एक सेक्टर ने, ऐसे हम इन दोनों बेसिस पे तीनों सेक्टर्स को, बीट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, दोनों, इन दोनों बेसिस पे तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं, राइट? चलो, तो बच्चों फर्स्ट बेसिस इज कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स बाय जीडीपी। अगर जीडीपी के बेसिस पे कंपेयर करें
द परसेंटेज शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, और टोटल जीडीपी हमने निकाल लिया और उसमें देखा कि प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंटेज शेयर कंट्रीब्यूट कर, प्राइमरी सेक्टर कितना परसेंटेज शेयर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, सेकेंडरी सेक्टर कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, एंड टर्शरी सेक्टर कितना करता है। तो बच्चों अगर 1970-71 की बात करें तो बच्चों क्या दिख रहा है, आई होप यू कैन सी इन दिस चार्ट, प्राइमरी सेक्टर कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर का बच्चों ऑलमोस्ट 50% प्राइमरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टू दी कंट्रीज जीडीपी। जैसे मैंने आपको बोला इकोनॉमी हिस्टोरिकल चेंजेस आई हैं, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की डिमांड बढ़ी है, और प्राइमरी सेक्टर क्योंकि इकोनॉमी जब स्टार्ट होती है सबसिस्टेंस इकोनॉमी से स्टार्ट होता है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो इंडिया में बच्चों 70-71 में प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर एट दैट टाइम, एंड देन बच्चों सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर भी उसके बाद फॉलोड बाय टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, राइट। लेकिन बच्चों अगर अब 2015-16 की बात करें, ऑलमोस्ट अबाउट 40-45 ईयर्स अहेड, 40-45 ईयर्स के बाद डिस्कस करें कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है तीनों सेक्टर्स का, तो क्लियरली वी कैन सी बच्चों टर्शरी सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट। टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है, ऑलमोस्ट 50%, मोर देन हाफ कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी का। एंड प्राइमरी सेक्टर का बच्चों कंट्रीब्यूशन कम हो गया है। प्राइमरी सेक्टर जो लास्ट 40-45 ईयर्स बैक वाज कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट टू द कंट्रीज जीडीपी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज लोअर डाउन, अब वो कम हो गया है। समझ में आ गया? So as I've written, over the 45 years, the production has although increased. बच्चों जीडीपी का साइज बड़ा है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बी इट इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में इंक्रीज हुआ है। अगर हम जीडीपी के बेसिस पे कंपेयर करें तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तीनों सेक्टर में बड़ी है। लेकिन बच्चों अगर परसेंटेज से तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर लिया जाए कि जीडीपी में कितना परसेंटेज तीनों सेक्टर्स का है, बट तो इट इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शरी सेक्टर। जीडीपी में परसेंटेज शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इज द हाईएस्ट। समझ में आ गया? वी ऑल कैन सी इन दिस चार्ट 2015-16 में टर्शरी सेक्टर हैज गेन इंपॉर्टेंस एज वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स। पहले प्राइमरी सेक्टर वाज गेनिंग इंपॉर्टेंस, now the tertiary sector has become the most important sector in our country, right? So the largest producing sector in India replacing primary sector, tertiary sector has become the largest producing sector in India, largest producing sector है, largest contribution to GDP and national income है, and it has replaced the primary sector. समझ में आ गया? क्लैरिटी मिल गई? so far so good, right? Now बच्चों we'll be discussing the rising importance of tertiary sector in GDP. ऐसा क्यों हुआ है? tertiary sector में importance कैसे बढ़ गई है? GDP में सबसे ज्यादा contribution tertiary sector का कैसे हुआ है? First point, the number of services are considered as basic services and are necessary. बच्चों जैसे मैंने आपसे बोला tertiary sector में दो important services आती हैं. One is the services that support the production primary and secondary sector, right? एक कुछ सर्विसेज हैं जो बच्चों प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए जरूरी हैं, जैसे बैंकिंग, स्टोरेज, इन द ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को चाहिए टू एड एंड असिस्ट देम, राइट? तो सेकेंड काइंड ऑफ सर्विसेज आर द बेसिक सर्विसेज। तो बच्चों बेसिक सर्विसेज तो आई होप वी ऑल नो कि ये सब लोगों को चाहिए, और वी all the people of the country require the basic services, the basic health facilities, education facilities, infrastructure. So these are the basic services which are provided by the tertiary sector. इसलिए बच्चों tertiary sector की importance country में बढ़ गई है, right? Second point, the agriculture and industrial demands leads to development of support services. जैसे मैंने आपसे बात करी है
प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो पीछे पीछे टर्शियरी सेक्टर आ जाएगा सपोर्ट करने। सो एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी है और इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड बढ़ी है, तो बच्चों टर्शियरी सेक्टर की सपोर्ट सर्विसेज जो टर्शियरी सेक्टर ऑफर करता है, टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, सर्विसेज, तो बच्चों सपोर्ट सर्विसेज फॉल अंडर दी टर्शियरी सेक्टर। तो सपोर्ट सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई है, ट्रेड की डिमांड बढ़ गई है, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोरेज, ऑल दीज बैंकिंग फैसिलिटीज, इसकी डिमांड बढ़ गई है। इसलिए बच्चों टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है टुवर्ड्स जीडीपी, राइट। थर्ड पॉइंट, विद द राइजिंग इनकम मोर सर्विसेज आर इन डिमांड। बच्चों एक तो था एसेंशियल सर्विसेज और एक है कि अदर बेसिक इंपॉर्टेंट सर्विसेज, अदर इंपॉर्टेंट सर्विसेज आर आल्सो इन डिमांड। टूरिज्म, होटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बच्चों दीज हैव कम इन डिमांड। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी का साइज बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास पैसे आ गए हैं, अब बच्चों ये टूरिज्म सर्विसेज, होटल सर्विसेज, प्राइवेट हॉस्पिटल, दे हैव बिकम, दे आर नाउ ऑफरिंग मोर सर्विसेज। बच्चों इनका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम की तरफ ज्यादा हो गया है, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट, इन द पास्ट डेकेड्स, पास्ट 10-20 years, new services, information technology and communication that has gained importance. इनका इसका importance, IT sector का importance बढ़ गया है। Now there is so much of टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बच्चों प्लेटफॉर्म, जो आईटी प्लेटफॉर्म है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो इसलिए बच्चों टर्शियरी सेक्टर की डिमांड बढ़ गई है, राइट। सो आई होप वी कैन ऑल अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। आई हैव गिवन यू 4 पॉइंट्स व्हिच आर एनफ फॉर योर एग्जाम्स, राइट। चलो नाउ बच्चों एज ए सेकेंड बेसिस टू कंपेयर द 3 सेक्टर्स, फर्स्ट वाज द जीडीपी। हमने देख लिया है कि जीडीपी में आफ्टर 40-45 years tertiary sector is contributing the most to the GDP, right? कंट्रीज जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया है, ऑलमोस्ट 50%। अब बच्चों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर ले कि एम्प्लॉयमेंट भी क्या उतनी ही शिफ्ट हुई है फ्रॉम द प्राइमरी टू टर्शियरी सेक्टर, और इज इट समथिंग एल्स? क्या प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर के, अगर टर्शियरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू द जीडीपी नेशनल इनकम, तो क्या बच्चों एम्प्लॉयमेंट भी वहां पर ही ज्यादा जनरेट हो रहा है, वहां पर ही एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल पा रही है इन द टर्शियरी सेक्टर, और इज इट समथिंग एल्स, राइट? So, we can see this chart, the percentage share in employment generation. बच्चों in 1970-71 प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी वाज द मैक्सिमम, 50% था। और बच्चों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो भी प्राइमरी सेक्टर वाज कंट्रीब्यूटिंग द मोर, प्राइमरी सेक्टर वाज जनरेटिंग मोस्ट एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां पर थी? इन द प्राइमरी सेक्टर। 75% of the employment was in the primary sector. 75% of the people were employed in the primary sector. Right? समझ में आया? लेकिन बच्चों अगर 40-45 years की बात कर ली जाए, इन 2015-16 एज वी ऑल नो कि टर्शियरी सेक्टर गेन इंपॉर्टेंस, जीडीपी और नेशनल इनकम टर्शियरी सेक्टर में बढ़ा, लेकिन बच्चों सैडली प्राइमरी सेक्टर में स्टिल बच्चों मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है, अबाउट नियरली 50%, और जस्ट लेस देन 50% अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही पीपल आर एम्प्लॉयड। जीडीपी नेशनल इनकम बढ़ गई है प्राइमरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, द टर्शियरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू द नेशनल इनकम, लेकिन बच्चों वहां पर एम्प्लॉयमेंट अभी भी कम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना विज़ जीडीपी नेशनल इनकम नहीं हुआ है। टर्शियरी प्राइमरी सेक्टर में बच्चों, प्राइमरी सेक्टर में अभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा है, समझ में आया? So I've written this. The GDP share of 3 sectors have changed. We have discussed this. प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की तरफ जीडीपी का चेंज हुआ है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, एंड टर्शियरी सेक्टर नाउ कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट। टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी, टुवर्ड्स द नेशनल इनकम, द टोटल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंट्री हैव इंक्रीज्ड, but similar shift has not taken place in employment. बच्चों सेम शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं देखी गई है।
primary sector continues to be the largest employer even now. बच्चों अभी भी प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर. तो बच्चों वहां पर जीडीपी पे प्राइमरी सेक्टर इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मच टू द जीडीपी अब 40-45 years after after the 1970-71 period, right? जहां पर पहले प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था 1970-71 में, लेकिन 2015-16 में प्राइमरी सेक्टर वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग मच टू द जीडीपी. लेकिन बच्चों अभी भी प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर. अभी भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है प्राइमरी सेक्टर. सो दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, राइट? सो बच्चों कंपैरिजन एक चार्ट बना दिया कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट एज आई हैव डिस्कस. प्राइमरी सेक्टर में बच्चों अब in 2015-16 after 45 years जीडीपी बच्चों कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का कितना, प्राइमरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग जस्ट 20% टू द कंट्रीज जीडीपी. प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अब थोड़ा रह गया है अनलाइक 40-45 years back 1970-71 where primary sector was contributing 50% to the country's GDP. लेकिन बच्चों 45 years ahead after 45 years सिर्फ कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का रह गया है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज. अगर टोटल जीडीपी की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर इज जस्ट कंट्रीब्यूटिंग 20%. लेकिन बच्चों अभी भी एम्प्लॉयमेंट कहां पर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर. अभी भी ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है, इन्वॉल्व है, नियरली 50%, एंड मेनली इन बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर को एज आई डिस्कस बोला जाता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. तो बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है अभी भी, राइट? समझ में आ गया. लेकिन बच्चों अगर दोनों को, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर दोनों को इंक्लूड करके उनकी जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट को निकाल लिया जाए, they contribute, both the sectors, the secondary and tertiary sector, they contribute 80% to the country's GDP. बच्चों 80% to the country's GDP. लेकिन बच्चों वहां पर एम्प्लॉयमेंट इज नियरली 50%. 50% अभी भी प्राइमरी सेक्टर में है एंड 50% बच्चों इन दोनों सेक्टर्स को मिलाकर टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, राइट? सो क्या इससे मतलब निकलता है, इतना प्राइमरी सेक्टर बच्चों प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. वी ऑल कैन सी 20% जीडीपी है जस्ट, इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वी ऑल नो. लेकिन अभी भी लोग वहां पर एम्प्लॉयड हैं. तो बच्चों क्या निकल कर आता है, इट मीन्स दैट देर आर मोर पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर. ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं देन रिक्वायर्ड. बच्चों इतनी तो जरूरत ही नहीं है, इतना तो आउटपुट ही नहीं निकल के आ रहा है, इतनी तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है. जस्ट 20% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्राइमरी सेक्टर. टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का 20% इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी सेक्टर, 80% इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंडरी and tertiary sector. Yet बच्चों more people are employed in primary sector. तो इसका क्या मतलब निकला कि that there are more people working in agriculture sector than required. इतनी तो जरूरत ही नहीं है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इतना तो आउटपुट ही नहीं निकल कर आ रहा, राइट? सो इवन इफ फ्यू पीपल मूव आउट, अगर कुछ लोग निकल भी जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से, तो बच्चों ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. क्लैरिटी मिल गई, समझ में आ गया? सो इवन इफ few people move out, production will not be affected. प्रोडक्शन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल मिनिमल इम्पैक्ट हो सकता है पर ज्यादा इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी. कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज इतना तो प्रोडक्शन ही नहीं निकल कर आ रहा. सोचो, इमेजिन 50% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, येट बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का जस्ट 20% है. तो इवन इफ फ्यू पीपल मूव आउट ऑफ दिस प्राइमरी सेक्टर, प्रोडक्शन विल नॉट बी इफेक्टेड, प्रोडक्शन इम्पैक्ट नहीं करेगी. सो वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड. बच्चों दे आर अंडर एम्प्लॉयड. जस्ट वांटेड टू टेल यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिसको जॉब्स ही नहीं मिली है, मतलब हु आर एलिजिबल टू वर्क, जिनके पास स्किल्स हैं लेकिन उनके पास जॉब्स की ऑफर नहीं है, जॉब्स उनको प्रोवाइड नहीं मिल पा रही है. लेकिन अंडर एम्प्लॉयड आर
who are working, but बच्चों वो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से वर्क ही नहीं कर रहे हैं. पीपल आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन बच्चों इतना वहां पर आउटपुट ही नहीं निकल कर आ रहा, वहां पर उन लोगों की इतनी जरूरत ही नहीं है. तो वो क्या कर रहे हैं वहां पर, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं. दे आर अंडर एम्प्लॉयड, दे आर नॉट ऑफरिंग सर्विसेज टू देयर फुल पोटेंशियल. अपने फुल पोटेंशियल के हिसाब से वो सर्विसेज नहीं ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी जरूरत के लिए काम ही नहीं है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, इससे क्लैरिटी हो जाएगी. अगर एक एग्रीकल्चर कोई फार्म लैंड है, एक पूरी फैमिली उस एग्रीकल्चर लैंड में इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयमेंट, तो दे आर एम्प्लॉयड. ऐसे तो माना जाएगा कि एवरीवन इज वर्किंग फॉर दैट एग्रीकल्चर लैंड. लेकिन बच्चों अगर 15 पीपल इन अ फैमिली एंड एवरीवन इज वर्किंग ऑन जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, छोटी सी पीस ऑफ लैंड में सारे लोग उसमें लग गए, आउटपुट तो उतना ही निकलेगा ना बच्चों. एक स्मॉल साइज ऑफ लैंड से तो आउटपुट तो फिक्स होगा. तो इतने लोगों की क्या जरूरत है, 15 लोग, वाई 15 पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर इन दैट पीस ऑफ लैंड. वो फ्यू पीपल अगर वो निकल भी जाए, फ्यू पीपल मूव आउट ऑफ दैट जॉब, अगर वो उस जॉब से निकल भी जाए तो वो तो भी बच्चों प्रोडक्शन इम्पैक्ट नहीं करेगी. इसलिए उन लोगों को कह दिया जाता है दे आर अंडर एम्प्लॉयड. उनको अपनी फुल पोटेंशियल से सर्विसेज नहीं ऑफर कर रहे हैं. समझ आया? आई होप यू कैन नाउ क्लैरिटी मिल गई है कि अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है. सो पीपल इन द प्राइमरी सेक्टर, पीपल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड. क्लैरिटी मिल गई है. 50% of the people are working in the are employed in the primary sector, but they are contributing very less to the country's GDP. बच्चों बहुत कम contribution है by the agriculture sector or we can say the primary sector to the country's GDP. Unlike in secondary and tertiary sector, अगर secondary और tertiary sector की बात करें तो 80% contribution they are contributing to the country's GDP and less than 50%, almost 50% are employed there. राइट. आई होप क्लैरिटी मिल गई है. कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, primary sector, secondary sector and tertiary sector on the basis of GDP and employment समझ में आ गया है. और ये समझ में आ गया है कि primary sector में more people are employed and the contribution उनका कम है, output उतना नहीं निकल कर आ रहा है and people are underemployed. अगर लोग वहां से निकल भी जाते हैं तो भी बच्चों प्रोडक्शन इतनी इम्पैक्ट नहीं करेगी, GDP पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. राइट. Right. So, bachcho, I have a question for you all. Name the sector that is the largest employer in India. I hope समझ में आ गया है कौन सा सेक्टर है largest employer in India. The primary sector. Why does this sector produce only a quarter of the national GDP? बच्चों 20-25% ही क्यों contribute कर रहा है to the country's GDP when primary sector में ज्यादा लोग employed हैं? कौन सा सेक्टर है जहां पर ज्यादा लोग employed हैं और वो सेक्टर क्यों कम प्रोडक्शन कर रहा है, क्यों कम कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द कंट्रीज जीडीपी? वी शुड ऑल नो दिस. आई होप क्लैरिटी मिल गई है. द फर्स्ट पॉइंट, वी ऑल नो दैट द प्राइमरी सेक्टर विद ओवर 50% पीपल एम्प्लॉयड. 50% पीपल कहाँ एम्प्लॉयड है? एज आई सेड, प्राइमरी सेक्टर में it is the largest employer in India. It contributes less than the quarter to the country's GDP. Country की GDP में बहुत कम contribution है, 20-25%. So 50% largest employer है primary sector, लेकिन इतना contribution नहीं कर पा रहा है. ऐसा क्यों? So the reason, second point, reasons for low GDP are, first point under reasons for low GDP, the low size of the land holding. बच्चों land holding का size छोटा हो गया है. अब ज्यादा लोग काम करेंगे तो भी बच्चों प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं निकलेगी. अनलाइक इन दी लार्ज लैंड एरिया, बच्चों अगर लार्ज लैंड एरिया होता है तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन अगर लैंड होल्डिंग का साइज छोटा हो जाए तो प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं निकल कर आती. सो फर्स्ट पॉइंट इज लो साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग रिजल्ट इन लोअर प्रोडक्टिविटी. इसलिए बच्चों आउटपुट इतना नहीं निकल कर आ रहा है. सेकेंड पॉइंट, लेस यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं यूज हो पा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में. बच्चों अभी भी वो हैंडमेड टूल्स और लो अपग्रेड नहीं किए हुए हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया हुआ है प्राइमरी सेक्टर में, विच इम्पैक्ट्स द प्रोडक्टिविटी. सो बच्चों प्रोडक्टिविटी एनहांस नहीं हो पा रही है, बढ़ नहीं पा रही है. सो जिस सिस्टम से पहले वर्क कर रहे थे अभी भी वही सिस्टम को फॉलो करते जा रहे हैं, तो इसलिए बच्चों प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का स्कोप नहीं है. राइट.
थर्ड पॉइंट, इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज टू द फार्मर्स अफेक्ट आउटपुट साइज। उनके फार्मर्स के पास ज्यादा पैसे नहीं है और उनको मार्केट करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मार्केट करने के लिए फैसिलिटीज नहीं है। वो एक फिक्स लोगों को अपनी आउटपुट देते हैं, तो बच्चों एक सर्कल बना हुआ है, तो वो अपने जोन से निकल नहीं पा रहे हैं। उनको फाइनेंसिंग की जरूरत है फार्मर्स को, सो दैट वो अपना आउटपुट बढ़ा सके। तो बच्चों इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज जो उनको फार्मर्स को नहीं मिल पा रही है, दैट अफेक्ट द आउटपुट साइज। इसके कारण बच्चों जीडीपी, द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द प्राइमरी सेक्टर इज लो, right? And the third point is there is an absence of alternate working options, giving rise to the disguised unemployment। बच्चों disguised unemployment क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपसे बात की कि ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, अगर कुछ लोग निकल भी जाएंगे वहां से, कुछ लोग कहीं और भी मूव कर लेंगे, तो भी बच्चों प्रोडक्शन इंपैक्ट नहीं होगी। लेकिन बच्चों वहां पर क्या प्रॉब्लम है कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट वर्किंग ऑप्शंस। लोगों को ऑल्टरनेट ऑप्शंस, वर्किंग ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज इन द रूरल एरियाज। तो बच्चों वहां पर लोगों को ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं मिल पा रहे हैं, दिख नहीं पा रहे, दे आर नॉट हाईली स्किल्ड। तो इसलिए बच्चों दे आर नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ द कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, स्किल्ड ऑप्शंस नहीं है, अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है हमारी कंट्री में। इसलिए बच्चों ज्यादातर लोग अभी भी स्टिल एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, मोर पीपल आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। अगर कुछ लोग निकल भी जाते तो भी बच्चों इम्पैक्ट नहीं करता प्रोडक्शन। तो इसलिए वहां पर ज्यादातर लोग कौन है? दे आर अंडर एम्प्लॉयड, दे आर अंडर एम्प्लॉयड, और जिसको बोल दिया जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नेम दे दिया जाता है। आई होप क्लैरिटी मिल गई है, समझ में आ गया है, राइट? सो बच्चों डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जैसे मैंने आपसे बोला ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। द फर्स्ट पॉइंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर वर्किंग, पीपल लोग काम कर रहे हैं, बट लेस देन देयर पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से उतना रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे। अगर ज्यादातर लोग एक स्मॉल लैंड होल्डिंग पे वर्क करेंगे तो बच्चों इतने ज्यादा लोगों की तो जरूरत ही नहीं है। सो पीपल आर वर्किंग, कहने को तो दे आर एम्प्लॉयड, काम तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों दे आर नॉट वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल, अपनी फुल पोटेंशियल के हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं। आई होप क्लैरिटी मिल गई है। सेकेंड पॉइंट, इट इज हिडन। तो अब बच्चों किसको पता चलेगा कि कौन काम कर रहा है फुल पोटेंशियल से और कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है फुल पोटेंशियल से? इसलिए बोल दिया जाता है इट इज हिडन, ये छुपा हुआ है। इसलिए नहीं पता चल पा रहा कि कौन लोग अंडर एम्प्लॉयड है, कि कौन लोग अपनी फुल पोटेंशियल से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। सो इसलिए इट इज हिडन। हिडन अनलाइक अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट का आई होप हम सबको पता है कि वेयर समवन डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल। लोग चाहते हैं जॉब करना। अंडर एम्प्लॉयमेंट, आई होप क्लैरिटी है इस बात की। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जहां पर लोगों के पास स्किल्स है और लोग पीपल आर विलिंग टू ऑफर देयर सर्विसेज, लेकिन बच्चों जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं, इतने लोगों की डिमांड ही नहीं है। अगर ज्यादा पेंटर्स है और कुछ लोगों की पेंटर्स की डिमांड है और कारपेंटर्स की डिमांड और इलेक्ट्रीशियंस की डिमांड है, तो बच्चों बाकी जो पेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस और कारपेंटर्स है, दे आर अंडर एम्प्लॉयड, उनको काम ही नहीं मिल पा रहा। सो सॉरी, दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयड, आई एम नॉट, दे आर नॉट अंडर एम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयड, उनको काम ही नहीं मिल पा रहा, बट दे आर रेडी टू वर्क, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सर्विस स्किल्स है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में आई होप समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट में लोग, पीपल आर विलिंग टू वर्क एंड दे बट दे डू नॉट हैव अ जॉब, अनलाइक इन अंडर एम्प्लॉयमेंट जहां पर लोग काम कर रहे हैं, people are working but less than their potential, so it is hidden। hidden है, ये छुपा हुआ है, unlike unemployment जो कि clearly visible है। लोग बोलते हैं कि we are unemployed, वो visible है, लेकिन under employment visible नहीं है। समझ में आ गया? So example, even if we remove people from agriculture sector, production will not suffer। ये इस बात की तो I hope अब सबको clarity मिल गई है। I have discussed this and absolutely clear है ये, right?
सो डिस्गाइज एंड अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों, थर्ड पॉइंट कहाँ देखा जाता है, नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इट इज ऑल्सो सीन इन अदर सेक्टर्स। बच्चों अदर सेक्टर्स में भी देखा जाता है। द कैजुअल वर्कर्स, द पेंटर, प्लम्बर, दे लुक फॉर डेली वर्क, ये डेली वर्क ढूंढते हैं। कहने को तो एक दिन काम कर रहे हैं, दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, आज किया कल नहीं किया, परसों किया, अगले 3 days नहीं किया। सो बच्चों दे आर समवॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड तो है लेकिन उनको डेली वर्क नहीं मिला, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर डेली वर्क। तो बच्चों ये हिडन है, दिस इज रेफर टू एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। और सर्विस सेक्टर में पीपल ऑन द स्ट्रीट सेलिंग समथिंग, जो लोग अगर सपोज अगर किसी को जॉब मिली है, कोरोना के एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, कितने लोगों की जॉब्स निकली हैं और व्हाट आर दे डूइंग जस्ट टू अर्न देयर लिविंग, दे आर सेलिंग ऑन द स्ट्रीट्स में बच्चों सेल कर रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं, बट दे दैट इज नॉट देयर फुल पोटेंशियल बच्चों, उनका वो काम नहीं है, दे कैन डू समथिंग एल्स। लेकिन सिंस वहां दूसरे प्रोफेशन में जो उनके अपने स्किल्स के हिसाब से जॉब है वो उनको अभी नहीं ऑफर कर रही है, सो दे आर वर्किंग इन समथिंग एल्स, वो कहीं और एम्प्लॉयड है। अगर जो स्ट्रीट सेलिंग वेंडर्स हैं, बहुत से बच्चों जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स थे या कार कैब ड्राइवर्स थे, नाउ दे डू नॉट हैव जॉब, अभी उनके पास जॉब नहीं है क्योंकि कोरोना के कारण डिमांड कम हो गई है। सो बच्चों दे व्हाट आर दे डूइंग, दे आर डूइंग सम अदर्स पेटी सर्विसेज, कोई और जॉब्स कर रहे हैं। सो इसलिए बच्चों ये हिडन है, ये इसको रेफर कर दिया जाता है विद अंडर एम्प्लॉयमेंट, दे आर नॉट वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल। सो सर्विस सेक्टर में पीपल ऑन द स्ट्रीट सेलिंग समथिंग टू अर्न लिटिल, की रोजी रोटी तो कमानी है तो कुछ अर्न करने के लिए ये दे आर डूइंग सम अदर जॉब्स, पेटी जॉब्स, बिकॉज दे डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटीज, उनके पास जो उनके स्किल्स से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं उनको मिल पा रही है। सो इसलिए बच्चों ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर जाता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में। सो आई होप क्लैरिटी मिल गई है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है इज नॉट जस्ट पर्टिकुलरली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इट इज ऑल्सो सीन इन अदर सेक्टर्स। द कैजुअल वर्कर्स और पीपल सेलिंग ऑन द स्ट्रीट्स, दे आर ऑल्सो अंडर एम्प्लॉयड, ये वो लोग भी बच्चों अंडर एम्प्लॉयड है, दे कैन प्रोवाइड सम अदर गुड सर्विसेज बट बिकॉज जॉब नहीं है दे आर डूइंग समथिंग एल्स। एम्प्लॉयड तो है, कोई काम तो कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो मिली हुई है, लेकिन बच्चों दे आर नॉट वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल। आई होप क्लैरिटी मिल गई है। सो बच्चों टॉपिक नाउ इज हाउ मोर एम्प्लॉयमेंट बी जनरेटेड, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, पर्टिकुलरली इन द प्राइमरी सेक्टर और इवन इन अदर सेक्टर्स जहां पर लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज कैसे ऑफर करी जा सकती हैं। सो क्वेश्चन हैज आल्सो कम इन योर एग्जाम्स, हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, एक्सप्लेन। सो बच्चों आई हैव मेनी पॉइंट्स टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट्स फ्रूटफुल हो सकते हैं। सो यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, राइट। So the first point is by identifying, promoting and locating industries in semi-rural areas like tourism, craft and IT. So बच्चों I hope we all know कि बेंगलोर में IT इंडस्ट्री इज IT हब है, वहां पर IT इंडस्ट्री फ्लरिश कर सकती है, पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर कैन फ्लरिश, ईस्ट की बात करें तो माइनिंग सेक्टर कैन फ्लरिश, गुजरात अहमदाबाद की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन फ्लरिश। तो बच्चों वी हैव टू प्रमोट, हमने आइडेंटिफाई करना है और लोकेट करना है कि कौन सी रूरल एंड पर्टिकुलरली द रूरल एरिया, सेमी रूरल एरियाज में बच्चों कौन सी इंडस्ट्री बूस्ट हो सकती है। वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस, प्रमोट करना है और लोकेट करना है इंडस्ट्रीज जो वहां पर पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, लाइक टूरिज्म, क्राफ्ट, IT। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो इंडस्ट्री वहां पर प्रमोट की जाए, लोकेट करी जाए इन पर्टिकुलर एरियाज, द रूरल एरियाज एज आई सेड, so that employment can be given to the maximum people. So as I said, every state has the potential of generating income and employment by promoting different industries. हर स्टेट के बच्चों पोटेंशियल है टू इनकम जनरेट करने का और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का इफ दे प्रमोट दी इंडस्ट्रीज। अगर उनके स्टेट में जो इंडस्ट्री बेस्ट सूटेबल है, जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, एवरी स्टेट नीड्स टू फाइंड एंड लोकेट दैट इंडस्ट्री, एंड बच्चों
बच्चों एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, राइट. सेकेंड पॉइंट, एम्फोसिस शुड बी लेड ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर सो दैट मोर स्किल्ड वर्कफोर्स इज प्रोड्यूस. ज्यादा स्किल्ड सर्विसेज लोग हों, बिकॉज इंडिया में बच्चों अनस्किल्ड सर्विसेज बहुत ज्यादा है, अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है, अनस्किल्ड सर्विसेज नहीं, अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है. और डिमांड किसकी है? स्किल्ड सर्विसेज की, स्किल्ड सर्विसेज की. तो बच्चों स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कैसे करेंगे? जब लोगों को एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलेगी. सो एम्फेसिस किस पे, फोकस किस पे होना चाहिए? ऑन दी एजुकेशन, पढ़ाई लोगों को दी जाए और ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए सो दैट इंडिया में भी स्किल्ड लेबर फोर्स ज्यादा हो, जो हु इज रेडी टू ऑफर सर्विसेज नॉट जस्ट टू आवर कंट्री इंडिया बट अक्रॉस दी वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में बच्चों स्किल्ड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है, लेकिन इंडिया में अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है, अनस्किल्ड फोर्स ज्यादा है. सो इट इज हाईली इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल कि लोगों को स्किल्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए ताकि वो अपनी स्किल सर्विसेज लोग, पीपल ऑफ आवर कंट्री कैन ऑफर दिस टू आवर कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. सो एज पर द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स 20 lakh जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर अलोन. बच्चों एजुकेशन सेक्टर की ही बात कर ले तो 20 lakh जॉब्स तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में ही डिमांड है, लेकिन बच्चों हमारे कंट्री में अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है. तो 20 लाख जॉब्स को पूरा करने के लिए स्किल सर्विसेज, लोगों को स्किल ट्रेनिंग सेंटर और एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट दे कैन फिट इनटू दोस जॉब, फिट कर पाए जॉब्स पे. इसलिए लोगों को एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू उनको स्किल्स वर्कफोर्स क्रिएट करना है, राइट. Third point, granting loans at lower rates to industries, small scale units will boost their production. बच्चों इंडस्ट्रीज बूस्ट होंगी, स्मॉल स्केल यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे अगर उनको प्रॉपर फाइनेंसिंग मिलेगी. लोग they are not able to expand their business. Industries and small scale units are not able to expand their units expand their business because उनको फाइनेंसिंग नहीं मिल पा रहा है. सो अगर लोन्स कम रेट्स पे मिले, इंटरेस्ट रेट कम हो लोन्स पर, तो बच्चों अगर उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली लेबर भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा. तो इसलिए बच्चों इट इज एसेंशियल कि लोन्स शुड बी गिवन एट द लोअर इंटरेस्ट रेट टू द इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स ताकि उनकी प्रोडक्शन बूस्ट हो, विच वुड इनहांस द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर आवर कंट्री, राइट. Now the next point, investing in infrastructure and welfare schemes. बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बिल्डिंग्स बनेंगी, डैम्स कंस्ट्रक्ट हो गए, रोड्स कंस्ट्रक्ट हो गए, वेलफेयर स्कीम्स, बिल्डिंग अ डैम, वेल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही जाएगी, राइट. सिंपल है. Next point, promoting small scale industries such as mills, honey collection centers with greater percentage of underemployed people. यहाँ पर बच्चों जो small scale industries जैसे mills industry और honey collection centers, यहाँ पर ज्यादातर लोग underemployed, यहाँ पर बच्चों underemployed लोग जो है वो फिट इन हो सकते हैं. तो इसलिए बच्चों ये इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना जरूरी है so that underemployed people can fit in these industries, right. Then the last point is an act. We all should know about this act, very important act for our country. This act मनरेगा act जिसको बोला जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. This is passed implementing the right to work in 625 districts. बच्चों right to work दिया गया, ये लॉ पास किया गया है जहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि people have right to work, no one would be unemployed, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, people have right to work. और बच्चों सबको जॉब्स दी जाएंगी and it is given and it's adopted in 625 districts. बच्चों 625 districts में ये लॉ पास हो गया है. ऑल दोज हु आर एबल टू, जो काम कर सकते हैं, एंड इन नीड ऑफ वर्क, जिनको जरूरत है काम की, दे आर गारंटेड 100 days ऑफ वर्क एनुअली. बच्चों साल में 100 days के वर्क उनको दिया जाएगा. गवर्नमेंट विल गिव दिस वर्क, एवरीवन हैज अ राइट टू वर्क, ये बोला गया है इन दिस लॉ. और बच्चों लोगों को जो काम करना चाहते हैं और जिनको जरूरत है उनको 100 days ऑफ वर्क मिलेगा ही मिलेगा साल के अंदर. Unemployment allowances, last point, unemployment allowances are given if government fails to provide work. अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाई है लोगों को, अगर 100 days का वर्क नहीं मिल पाया है लोगों को, तो बच्चों क्या मिलेगा?
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे. सो ये बोला गया है एवरीवन हैज राइट टू वर्क. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, हम काम देंगे, गवर्नमेंट काम देगी. 100 डेज का गारंटेड काम है और अगर वो 100 डेज का काम नहीं दे पाए तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस तो पक्का देंगे. Right, so we all should know about this मनरेगा Act passed in 2005. तो ये क्या है ये पता होना चाहिए. Right, so with this बच्चों I end today's session and I will be discussing the further part of this chapter, the two remaining classifications of economic sector. I hope the first classification बहुत अच्छे से clear हो गया है, समझ में आ गया है, तीनों सेक्टर का रोल समझ में आ गया है. जीडीपी का कंट्रीब्यूशन किसका रहा है आफ्टर 45 इयर्स और एम्प्लॉयमेंट कहां पर है स्टिल अभी इन द प्राइमरी सेक्टर, क्लैरिटी मिल गई है. हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड ये भी बता दिया है. Right, so in the next session I'll be discussing the other two classifications of economic sector. So I shall see you very soon with the next session. Till then, goodbye, take care and have a nice day. Bye बच्चों.